Hello everybody, what's up? How are you all guys? Welcome to An Academy 7th Standard and I hope you all are doing great because right here we are going to start with our second session of this chapter that is before I start with the session or even before I introduce myself, I would like to tell you that An Academy, as you all know, An Academy is the largest online educating platform right here today and it will remain so with a little bit help from you. आप लोगों की बस थोड़ी सी मदद चाहिए और अन अकेडमी हमेशा हमेशा नंबर वन पे कैसे कैसे आप लोगों को क्या करना है बस इतना सा करना है आप लोगों को कि you just have to take a look at the red button that is right below the video. इस वीडियो ठीक नीचे देखो एक लाल रंग का बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो कि अन अकेडमी को नंबर वन पे रखना है ना yes right so guys come on go ahead I need your like share and subscribe and ढेर सारा प्यार मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरे से प्यार करते हो आप लोगों को अन अकेडमी से प्यार है like and share and subscribe let everybody know the secret that An Academy 7 Standard, a new channel just for you, just for you, a new channel आप लोगों के लिए बनाया गया है तो फिर इंतजार किस बात का जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब बटन पे हिट करो and let me know that you guys are in love with science, you guys are in love with An Academy and you guys love me. Alright? Okay guys, तो चलो आगे बढ़ते हैं. If you remember, we have already taken care of one session of this chapter that is here. Alright. However, I would like to introduce myself to you all. So everybody, hello. I am Navamita Bhattacharya and I am your science educator from An Academy. And I have done my masters in nanoscience and technology. मैंने अपना मास्टर्स कर रखा है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया है 5,000 से ज्यादा तो मैंने मेंटोर किया होगा एंड आई हैव बीन अ प्रोजेक्ट इन IIT. So guys, this is your live school daily dose. Live school daily dose का डोज मिलेगा यहीं पे. ओके तो क्या हुआ स्कूल नहीं जा सकते हो कोरोना का टाइम है कहीं नहीं जा सकते बाहर नहीं निकल सकते पढ़ाई तो रुकना नहीं चाहिए पढ़ाई तो पढ़ाई करने के लिए कहाँ आना है कुछ के डेली के स्कूल का डोज के लिए कहाँ जाना है आप लोगों को अगर आप 7th स्टैंडर्ड पे हो यू वांट टू स्टडी एवरी डे आपको मिलेगा रोज की पढ़ाई की डोज ऑन एकेडमी 7th स्टैंडर्ड. ऑलराइट तो चलो आगे बढ़ते हुए लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी. इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हॉट एंड कोल्ड. हम लोगों ने पता कर लिया है कि गर्म क्या चीज होती है हॉट एंड कोल्ड हमें पता चल we know the concept of temperature also. हमें पता है कि जब टेम्परेचर बड़ी हो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो समथिंग इज हॉट टेम्परेचर कम होता है तो समथिंग इज कोल्ड. We know about this. We know the differences between heat and temperature. We know how to measure temperature, what is thermometer, how to read a thermometer. What we do not know is how heat transfer. Heat transfer के 3 ways होते हैं. There are 3 ways heat can get transferred from one place to another. वो कैसे होता है उस बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे इलेबोरेटली पढ़ेंगे इतने अच्छे से कि सब कुछ चमक जाए बिल्कुल दिमाग में आसानी से और कभी आप ये कॉन्सेप्ट को ना भूलें. एंड फाइनली वी विल कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर में कैसे कपड़े पहनते हैं विंटर में ठीक है इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट से पहले कि मैं ट्रांसफर ऑफ हीट आपको बताऊं मैं आप लोगों को थोड़ा सा वॉक डाउन द मेमोरी लेन करवाना चाहूंगी ताकि आप लोगों के दिमाग में जो मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था whatever I taught you in the previous class I want everything to be clear. So are you guys ready for a little recap? Come on give me some yes or no. Do I see some yes or no? Come on guys let me see everybody come on hit your answers in the comment section and let me know are you all excited for the recap as well as for the chapter that we are going to complete it. Come on. Do I see yes? I do see some yes. All right. So chalo, let's start. So you remember I told you that pizza or hot coffee, hot tea, ये सब hot होती है as the name suggests, right? And then you have ice cream and juices that are cold. And we know that usually most of the time like these things like ice cream or juice or
hot tea or pizza, उनको हम पकड़ के पता लगा, or we taste them, we eat them up and then we know, oh, this is hot, करेक्ट? हम पकड़ के या टेस्ट करके पता करते हैं कि गर्म है ये। चलो, but we also found out that our sense of touch is not the most reliable source to let us know what temperature is right, what is hot or what is cold. In fact, there are times when our own hands, two hands behave differently. One tells that okay, this must be cold. One tells that no, this must be hot. And we are in a dilemma. हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सा सही है, हमारा राइट हैंड दाहिना हाथ सही कह रहा है कि बायां हाथ सही, हमें समझ ही नहीं आता है ना। तो इसके लिए हमने पता लगाया कि हमारा सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल, वो हमें धोखा दे जाता है। तो जब हमारा ही टच खुद हमें धोखा दे जाता है, हमें इसका मतलब चाहिए और need something else. And what is it that we needed? We require temperature. हमें पता चल गया कि टेम्परेचर जो है that is a reliable measure of what is hot and what is cold. तो टेम्परेचर का डिफरेंस बताया था मैंने बताया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज अ थर्मल कंडीशन। टेम्परेचर उसी बॉडी का उस वक्त का कंडीशन है। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो सिस्टम का हीट सेम रहता है, बल्कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और हमने ये भी बताया कि हीट करवाता है, किसी चेंज को हीट करवाता है। हीट इज अ कॉज, टेम्परेचर बदलता है। हीट बदलाव का रीजन है, जबकि टेम्परेचर बदलता है। हीट की एसआई यूनिट थी और टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। Not know about all of this? Of course we know about all. And we also got introduced to the hero of this chapter, that is thermometer. Thermometer is that device which is utilized to measure temperature. And there are different types of temperature thermometers. What are the different types of thermometer? You have clinical thermometer, you have digital thermometer, you have temperature gun, as well as laboratory also there. चले, सबको समझ आ रहा है, चमक रहा है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। फिर हमने पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के पार्ट्स क्या क्या है। तो इस जगह को कहा जाता है बल्ब। ठीक हियर, यहाँ पे एक ऐसा सा एक वेंट है जिसको कहा जाता है किंग। ये पूरा चीज जो है, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। नहीं, सॉरी, ये पूरा चीज जो है, दिस इज योर यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये है यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इस यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब के अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है, जहां पे ये बल्ब से मर्क्यूरी जब एक्सपैंड होती है हीट के वजह से, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जाती है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि थर्मोमीटर में पढ़ना कैसे। Exactly the way you use a ruler. जब आप एक लाइन खींचते हो ज्योमेट्री के चैप्टर में, आपके मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होगी, तो आप लाइन खींचते हो, उस लाइन मेजरमेंट कितनी आप जैसे पढ़ते हो, ठीक उसी तरह आपको थर्मोमीटर, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल डिवीजन, बिग डिवीजन, like 1 to 2, this is the large division. In this large division, you will find 10 smaller division. And then I asked you कि आपको पता लगाना है how much is one small division. And I told you that one small division is 1. And the same goes for thermometer as well. तो आप थर्मोमीटर को ऐसे पढ़ते हो। के बाद मैंने ये भी पढ़ा था कि सिर्फ थर्मोमीटर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये भी पता लगाना है कि ओए थर्मोमीटर कांच की बनी हुई, मतलब कांच की पुतली जैसे उसका टेक केयर भी करना पड़ता है। यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ अ थर्मोमीटर। एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ अ थर्मोमीटर? How do you take care of a thermometer? You take care of a thermometer by washing it before and after, preferably with an antiseptic. आपको एक एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करने के बाद भी ensure that before use the mercury, आप इस्तेमाल करने से पहले, जब भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे थर्मोमीटर से पहले, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि
मर्क्यूरी जो लेवल है वो 5 डिग्री, या फिर आप उसको जर्क कर दो ऐसे ऐसे ताकि मर्क्यूरी लेवल नीचे। और फिर मैंने क्या बताया था कि थर्मोमीटर को ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं बल्कि आंखों के बिल्कुल सामने रख के पढ़ना है। के बाद मैंने ये कहा था जब आप जर्क कर रहे हो मेक श्योर इट डज नॉट हिट समथिंग, हैव टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट। सांच की है, अगर कोई चीज बहुत हार्ड होगा उसके साथ अगर ये टकरा गया तो टूट गया, तो मर्क्यूरी पॉइजनस, मर्क्यूरी एक्सेप्शनली पॉइजनस, और मन क्या कर सकता है, आपको आपको तकलीफें पहुंचा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर नॉट सपोज hold the thermometer like this, not at the nib, not at the bulb. You are supposed to this way, okay? Where it is, where there is no bulb. Right here, you are okay. All right, guys. We also read what is a normal human body temperature. Normal human body temperature is 37 degrees Celsius, and I also took clinical and laboratory, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था. I also gave you 10 seconds so that you can take a screenshot of it. Alright guys, and now if you want to take a screenshot, I will ask you to pause it. Take a screenshot, forward. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हुए let's understand transfer of heat. क्या आपने कभी देखा है कि आप गैस के ऊपर, राइट, आप गैस पे एक तवा चढ़ाते हो, मान लो let's say that you gonna make an omelette. आपको एक ऑमलेट बनाना है या फिर मैगी बनाना है, आपको मैगी बनाना है और आपने तवा चढ़ाया और हीट करना शुरू कर. So it was hot. The pan became absolutely hot. Correct? ये जो तवा था ये बिल्कुल गर्म हो गया. अब आपने मैगी बना लिया. ठीक है, मैगी को आपने परोस दिया. आपने एक बोल में मैगी को परोस दिया. एक कटोरा लिया, उसमें सारी मैगी डाल दी. अब क्या करोगे, ये तवा जो है ये खाली हो गया. इसको आपने स्लैब के ऊपर रख दिया. Kept it on the slab. As you kept it on the slab, the tawa starts to down. जो तवा होता है ये थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि थोड़ा 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 होने लगता. अब सवाल आता है ये तवा क्यों ठंडा हुआ और कैसे ठंडा? There are two questions that we are asked. What are the two questions? One is that how does it heat up? Second, why does it? तो ठंडा क्यों होता है और ठंडा कैसे होता है? दोनों के सवाल का जवाब है आप लोगों को पता है हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट cold हमेशा, right? You know that, correct? You know that travels from hotter object colder object. Always, हमेशा ही एक गर्म चीज से ठंडे चीज की ओर बढ़ता है, कभी उल्टा नहीं होता. तो तवा गर्म था और आपका किचन का स्लैब ठंडा था, तो क्या हुआ, गरम तवे से किचन के स्लैब तक ही अपने आप चला गया. तवा गरम था, राइट? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हीट तो चला गया, पता है हमें कि हीट की ट्रेवलिंग हुई, हीट एक जगह से दूसरे जगह गया, बिल्कुल. पर ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमें स्लाइड में दिख रहा है ना, 3 नाम दिख रहे हैं हमें, 3 टर्म दिख रहे हैं, 3 शब्द दिख रहे हैं. We are able to see 3 words here and we see that the 3 words are conduction, convection. So what? These are the paths that is followed by हीट. जब मैंने अभी क्या कहा, हीट जब एक गर्म जगह से ये जगह पे पहुंचता है तो उसके पास 3 रास्ता होता है. एंड दीज 3 roads that are taken by heat, conduction, convection. Do you guys want to know what are conduction, convection and radiation? क्या आप जानना चाहते हो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है? चलो पता करते हैं. चलो शुरू करते हैं. कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है पता करते हैं. एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक रॉड. क्या लेंगे, हम लेंगे एक मेटल रॉड. ठीक है, मेटल बोले तो आयरन ले लेते हैं, लोहे का रॉड ले लेते हैं, आयरन रॉड लेते हैं. ठीक है, एक आयरन रॉड लेते हैं और मोमबत्ती होती है ना, मोम वैक्स. ठीक है, हम
यहाँ पे ऐसे वैक्स चिपका देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोमबत्ती को पिघला के उसको चिपका देंगे, ऐसे चिपक जाएगी। ये जो लाल मैंने क्या लगाया, ये दिस इज कैंडल वैक्स, ठीक है। कैंडल वैक्स हमने चिपका दिया। अब क्या होगा, क्या होएगा बता सकते हो क्या होगा? अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे आग जला, ठीक है। I have burned up this burner. I've lighted up this burner and this burner is start hitting rod. रॉड के इस पार्ट को हीट करेगा, नॉट हिट, सॉरी, रॉड के इस पार्ट को हीट करेगा और हम देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद ये जो कैंडल वैक्स है, ये पहला वाला, ये ठप करके नीचे, ये पहले गिरेगा, फर्स्ट दिस। थोड़ा देर और वेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दूसरा वाला भी गिरेगा, सेकंड ये, थोड़ा और टाइम वेट करेंगे, ये गिरेगा, थर्ड वन विल फॉल एंड फाइनली दिस वन फॉल एज वेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हीट, गरम, ट्रांसफर, हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। कैसे जा रही है? फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। हमने गरम तो सिर्फ इस पार्ट को किया था, इस पार्ट को तो गरम नहीं किया था हमने, पर हम देखते हैं कि थोड़े देर बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस ऑल्सो becomes hot. Do we see? Travels, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है without moving anything, क्या आपने do you see that was there any movement here? ये रॉड हिल रहा था क्या? और did you see somebody walking with heat like a luggage, like pulling the heat and walking on the road? Did you see somebody doing that? That means nobody moved. Without movement of any molecule, any atom, heat got transferred from the hotter end to the colder end, known as conduction. You know what? This is the definition of conduction. What is the definition of conduction? You saw that you heated this part, but slowly the heat got transferred. Right? Because the waxes kept one after the another. तो हमने क्या पढ़ा? What is the definition of conduction? Conduction की definition हमने क्या पता लगाया? हमने पता लगाया कि the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. Conduction क्या है? Conduction है जब गर्म पॉइंट से ठंडे पॉइंट तक हीट ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। अब कंडक्शन के बारे में एक फैक्ट पता लगा। कंडक्शन जो है वो जनरली सॉलिड्स में है। जनरली कहाँ होती है? जनरली इट हैपेंस इन प्लेस ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में जब हीट ट्रांसफर होती है तो मूवमेंट नहीं है, पर हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच, और इस चीज को बोला जाता है, इस चीज को क्या कहा जाता है बेटा? जल्दी बताओ, कमान कमान कमान, let me know your answers, everybody, go ahead, what is it? Absolutely right, conduction. Yes, conduction होता है सॉलिड्स में। अब आप पूछोगे कि पर मैम गैस के ऊपर जब हम तवा लगते हैं तो थोड़ा सा गैप होता है, क्या वो आग तो गर्म है ना, आग तो गर्म है, और जब आप गैस पे तवा को चढ़ाते हो तो वो तब जो होता है वो लोहे का जो रिम होता है, that actually touches the bottom of the तवा as well, और इस वजह से कंडक्शन समझ आया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कंडक्शन। ये होता है कंडक्शन। अब कंडक्शन में एक और चीज आती है, एक और चीज है। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, क्या आप इस जगह को, तवा ना गैस पे चढ़ाया हुआ है, तवा गैस पे चढ़ाया हुआ है, क्या आप यहाँ पे, ठीक यहाँ पे क्या आप अपना हाथ रख पाओगे? अपना हाथ रख, ये चीज बनी भी मेटल की बनी, राइट, मेटल की बनी हुई, और यहाँ पे आपको बीच में हाथ रखने, आप नहीं रख पाओगे, करेक्ट, नहीं रख पाओगे, पर आप इस जगह को आराम से पकड़ लेते,
दोनों ही एक ही चीज, दोनों ही सॉलिड्स है, पर आप एक पार्ट को पकड़ सकते हो, दूसरे पार्ट को नहीं। यहाँ पे आता है दो शब्द। Here, right here, we get to know about two simple things. What are the two things? One is conductor and one is solids. When we are talking about solids, we can divide solids into two categories. हम solids को दो ग्रुप में, दो विभागों में बांट सकते हैं, और वो दो विभाग क्या होंगे? एक होता है कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर। वो होता है जो अपने आप में को ट्रेवल होने या अलाउ करता है, जो अपने आप में से वो कहता है कि चल जा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तू निकल। कंडक्टर क्या करता है? अपने आप में से को ट्रेवल होने को ट्रेवल। इंसुलेटर्स आर लाइक, हम मर जाएंगे, हम पिघल जाएंगे, हम जल जाएंगे, बट वी विल नॉट लेट यू पास थ्रू। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू। इंसुलेटर्स की एग्जांपल प्लास्टिक या वुड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये हैंडल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई, और दिस इज नॉट अलाउइंग हीट टू ट्रेवल, विच इज व्हाई ये आप पकड़ सकते हो और ये गर्म नहीं लगता, बट दिस इज अ मेटल. A metal is a good conductor. Okay, metal is a good conductor of heat. It is, or let's just say, instead of good conductor, we can also say that metal is conductor of, whereas plastic is insulator or poor conductor of heat. Okay, तो यहाँ पे एक और बारी definition देखते हैं. What is the definition, guys? The definition: conductor, the materials which allow heat to pass through them are called conductors. Insulators, the materials which do not allow heat to pass through them easily, are called poor conductors. Or insulators. Yeah, absolutely clear, guys. So let's move on and let's understand another one. This time, let's understand convection. ध्यान से इस पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है? गरम टी, right? You have hot tea cup. You have hot in this cup, and the smoke goes up. Do you see the smoke going like this or like this? No. Or is the smoke like coming down? No. The smoke जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या? What do we understand from? What? I'll tell you. Hot air or hot gas, hot or hot, let's say liquid, hot liquid, hot air or hot are lighter than cold air. Cold air are lighter, हल्के होते हैं. They are lighter than hot. Sorry. They are, one second. Just a second. Let me write it down right here for you. Are lighter than, one second. Are lighter than cold air or cold liquid. तो अब जो भारी होगा वो नीचे रहेगा और जो हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा. करेक्ट? एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? आपको पता है जो भी चीज हल्का होगा वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, है ना? अक्सर यही होता है. दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस. सो हियर, because the hot air is lighter than cold air, start to rise up. Hot air ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा और cold air नीचे रहेगा. Something that is very important. ध्यान से सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो. Come on, everybody, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, and listen to me. What did I say, guys? Hot air is lighter than cold air, or even hot liquid. Hot liquid is lighter than cold liquid. So hot air or hot liquid always comes above the cold air or cold liquid. Yeah? Very important part of convection. Now convection is something where what happens is the transfer of heat takes place in fluid or gas. Fluid or gas. So you know that conduction happens in solids, but convection generally happens, or it always happens in
और गैस। कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड और गैस में होता है, हवा या पानी में। चलो अब कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। वी विल डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट फॉर कन्वेक्शन। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ऐसा एक ट्राइपॉड लेंगे, विल टेक अ स्टैंड, ओके, दिस स्टैंड और अ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड या ऐसा स्टैंड लेंगे। स्टैंड के ऊपर एक बीकर रखेंगे, बीकर में हम पानी भरेंगे और a pinch of potassium permanganate crystal. Why are we using potassium permanganate crystal? We are using potassium permanganate because colored, ये colored है और हमें कलर के मूवमेंट के वजह से पता चल जाएगा कि गर्म पानी और ठंडा पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, हम हीट का मूवमेंट देख पाएंगे, इसके लिए हम इसको कलर करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक बर्नर का इस्तेमाल किया। व्हाट आर वी यूजिंग? अ स्टैंड, वी यूज सम बीकर, सम वाटर, सम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड अ बंसन बर्नर, ठीक है। नाउ लेट्स लाइट अप द बर्नर, ठीक है, हमने बर्नर में जला दिया। नाउ यू नो व्हाट विल हैपन, यू that right here is the potassium permanganate, correct? And what will happen is this whole part of the water will start becoming hotter. अगर मान लो मैंने यहाँ पे कैंडल जला रखा है और मैंने हाथ ऐसे ऊपर रख दिया, क्या होगा? कैंडल डायरेक्टली पहले इस पार्ट को गर्म करेगा, ये वाला जो मेरे हाथ का हिस्सा है दिस विल बिकम हॉट फर्स्ट, उसके बाद इधर इधर मुझे गर्म लगेगी, है ना, ये पार्ट सबसे पहले गर्म होगा। ठीक इस तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है और जहाँ पे कैंडल है, जहाँ पे कैंडल इज हिटिंग विद द हीट, ठीक वो वाला पार्ट जो है पहले गर्म होता है। और हमने क्या पढ़ा? हॉट लिक्विड इज लाइटर, तो जैसे ये गर्म होता है ये पानी ऊपर चला, हॉट वाटर गो अप, हॉट वाटर बीइंग लाइटर देन कोल्ड वाटर ऊपर जाता है। जैसे ही हॉट वाटर ऊपर जाता है उसी वक्त सारे के सारे ये जो चारों ओर इतने सारे ठंडे पानी है, एज यू कैन सी राइट हियर, यहाँ पे ठंडा पानी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे ठंडा पानी है, ये पार्ट तो गर्म नहीं हुआ, सबसे पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ, ये वाला पार्ट गर्म हुआ, गर्म होते ही गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ये ठंडा पानी है ये देखता है कि ओए ये जगह तो खाली है, तो वो भागता हुआ यहाँ पे आके जगह लेता। ठीक, यहाँ पे एक सर्कल चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है, कैन यू, चलो मैं एक और बारी ड्राइंग बना के बताती हूँ। ये देखो, गर्म पानी कहाँ गया? गर्म पानी ऊपर गया, ठीक है, और हमने क्या देखा, आसपास का जो ठंडा पानी था वो इधर आ गया। गर्म पानी जब ऊपर जाता है, गर्म पानी क्या करता है, ऊपर जाने के बाद एकदम ऊपर तो वो ऊपर ऊपर चला ही नहीं जाएगा, वो तो उड़ के नहीं चला जाएगा, तो गर्म पानी गर्म होके ऊपर जाता है और फिर ऐसे टर्न लेता है, जब वो आते आते ठंडा हो जाता है फिर चलता है। ये जो चीज आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी यहाँ आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी यहाँ, गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा यहाँ आता है, दिस इज कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन आपको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाई विल यू एबल टू सी मॉलिक्यूल? साफ साफ दिख रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर होके ऊपर जा रहा है, ये प्रोसेस चलता रहता है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन जो है वो आप क्या करते हो पता है? एक और बात बता, आपको कैसे पता कि गर्म हवा जो है वो ऊपर को ही जाती? आप एक कैंडल जलाओ, एक हाथ ऊपर रखो, एक हाथ ऐसे साइड में रखो, ठीक है, एक हाथ ऐसे साइड में रखो, साइड वाला हाथ गर्म होगा ज्यादा कि ये वाला हाथ गर्म होगा? ये वाला हाथ गर्म होगा ना, इसका मतलब गर्म हवा ऊपर जा रहा है साइड में से, ठंडी हवा साइड में से यहाँ का जगह लेने। क्या आपको पता है कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम रोज देखते भी है, एवरी डे हम कन्वेक्शन को देखते हैं, देखते हैं
चलो अब इमेजिन करते हैं कि ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू, चलो हमारे लिए हमने सोच लिया है कि कोरोना है नहीं, लॉकडाउन है नहीं, अब हम चले गए गोवा के किसी में मजे करने, ठीक है, ऑल ऑफ अस लेट्स गो टू अ गोवा बीच एंड वी आर हैविंग फन हियर। तो अब क्या होता है, आपको पता है क्या, वाटर टेक्स लॉन्गर टू हीट अप, वाटर टेक्स लॉन्गर टू अप, पानी को ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने, जबकि लैंड, लैंड जो लैंड टेक्स लेसर टाइम टू, लैंड क्या करता है, लैंड टेक्स लेस टाइम गेट हीटेड अप, लैंड को गर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब क्या होगा, अब क्या होगा हम बात करते हैं। नाउ दिस इज अ दिस होल थिंग, दिस फिनोमिनन, ये जो इंसिडेंट है, ये जो रोज का जो होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कन्वेक्शन की वजह से ही ये होता है, ठीक है, ये बिल्कुल कन्वेक्शन पे जाता है और ये कन्वेक्शन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सी। अब ये दिन का समय है, राइट, दिस इज डे टाइम, डे टाइम में यू कैन ऑल्सो सी सन, हियर इज योर सन, यू हैव सन हियर, बिकॉज ऑफ सन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मिट्टी जो है ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, मिट्टी झट से गर्म हो जाती है, सुबह का टाइम है, धूप की रोशनी यहाँ पे पड़ती है, तो जैसे ही गर्म होता है, the land becomes warm. As soon as the land becomes warm, the air around the land, the air around the land becomes warm. The air around the land that also becomes warm. और हमने क्या पढ़ा, warm air goes up, तो warm air ऊपर जाती है। ठीक उसी वक्त अभी जो क्या है, अभी क्या है, दिन का समय है, पर समुंदर का पानी जो है वो गर्म हुआ नहीं, ठीक है, the sea water is not hot, sea water is not hot like the land, land ज्यादा गर्म है, अभी ठंडा है, तो सी ठंडा है, मतलब सी के चारों ओर जो हवा है वो ठंडा है, तो ये ठंडी हवा, ये ठंडा जो हवा है, ये जो कूल कूल सा ब्रीज है, देखता है कि ओ यहाँ पे तो जगह खाली हो गई, तो ये भागता हुआ इधर आता है और यहाँ सर्कल बन जाता है, ये सर्कल बनता है, वार्म एयर राइजेस अप गोज हियर, कूल एयर रशेस टुवर्ड्स द लैंड and it forms a circle and this is, अब आप पूछोगे बट मैम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इज कंफ्यूजिंग, वेरी इजी, आई टेल यू समथिंग, देखो देखो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द डे टाइम cold air comes from sea, daytime, daytime cold air from, cold air from sea, यानी कि नाम है ब्रीज, जहां से भी ठंडी हवा आ रही होगी वही नाम आपको का देना है। So during the day, the cold air rushes from the sea to the land and that's known as sea breeze. Alright, now let's move on and understand land breeze. अब क्या होता है, पूरे दिन की गर्मी, पूरे दिन, because the water was sitting under the sun, the whole day the water starts getting hotter and hotter and hotter and hotter and hotter, the water becomes hot. Now the water, अब पानी ने क्या किया, ज्यादा टाइम लगाया गर्म होने में, तो इसको ज्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में, ठीक है, ठंडा होने में भी पानी को ज्यादा टाइम लगता है और गर्म होने में भी पानी को ज्यादा टाइम। अब रात का वक्त है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपको मून दिख रहा है, मतलब रात का वक्त है, ठीक है, रात का वक्त है। अब रात के टाइम पे क्या होता है, लैंड क्या हो गई थी, झट से गर्म हो गई थी, तो वो झट से ठंडा भी हो जाता है, लैंड क्या करता है, झट से गर्म भी हो जाता है, झट ठंडा भी हो जाता है। So this time now during the night land is cold but the sea warm, पूरे दिन में पानी गर्म हो गया, अब पानी को ठंडा होना है, ठंडा होना है, पर अभी ठंडा नहीं हुआ, वो गर्म है, पानी अभी गर्म है, सी वाला पानी अभी गर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, द एयर अराउंड द सी,
समुंदर के चारों ओर जो हवा है वो भी गर्म है। तो हमें पता है कि गर्म हवा ऊपर जाती है और ये जो कूल कूल लैंड ब्रीज है is कि this place is getting empty, so it rushes and again this big circle. The warm air from the sea rises up, goes then the cold air from the land rushes towards the sea, and this keeps going on and on and on, and this is so what do we say now? What do we say? Night time. Okay, you have night time now. Night time, what happens? Cool cold air cold air from, write it down, cold air from land, so it becomes what will be the name? The name land breeze. Clear है? Is all land breeze clear हुआ सबको अभी? Absolutely clear. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? क्या बोला मैंने? दिन के वक्त लैंड गर्म रहेगा, सी ठंडा रहेगा। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, सी से ठंडी हवा दौड़ के यहाँ पे भागेगी, एंड दिस सर्कल गोज ऑन। दिन के टाइम ब्रीज, डे टाइम सी ब्रीज, night time land breeze. So how will you remember? How will you remember? DSNL. You know BSNL, right? तो BSNL को आप DSNL कर दो, तो क्या हो जाएगा? डे टाइम सी लैंड ब्रीज। तो कूल, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज है रेडिएशन, ये एक और पार्ट ऑफ रेडिएशन। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप सर्दी का मौसम है, ओके, इट्स विंटर सीजन एंड यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली कोल्ड इन योर हाउस, सो यू गो आउट, sunshine, you sit under the sun and you feel oh so warm, this feels so nice, है? आपको सूरज की रोशनी मिलती है, या you get the heat from the sun. How are you getting the heat from the sun? Sun is solid, या sun solid है? Sun is not. Sun might be liquid or gas, okay, sun might be gas, definitely gas है, but you know कि sun और अर्थ में, सन और अर्थ के बीच there is space between earth and sun. There is space, और space का मतलब है no air, no liquid, no solid. space का मतलब है कुछ नहीं है। तो अभी तक तो हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन में पढ़ा था कि कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड, whereas convection happens in liquid and air. Solid, liquid and gases are medium. But space, now we have space where there is no medium. स्पेस का मतलब है उस जगह पे कुछ नहीं है, इट्स वैक्यूम। तो भाई अब अगर कोई मीडियम ही ना हो, नाउ व्हेन देयर इज नो मीडियम, हाउ इज द ट्रांसफर समथिंग? हीट को कोई मीडियम चाहिए, बिना सॉलिड के, बिना लिक्विड, बिना गैस के भी से दूसरी पे ट्रांसफर कर सकते। हीट अपने आप भी चला जाता है बिना किसी सपोर्ट की, कि ये तो कोई नहीं चाहिए, मैं खाली जगह पे भी भाग लूंगा। तो फ्रॉम द सन टू द अर्थ विदाउट एनी मीडियम वेयर देयर इज स्पेस, जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे देयर इज नो सॉलिड, नो लिक्विड, गैस, इस जगह, इन जगहों पे भी ट्रांसफर, और व्हेन हीट ट्रांसफर्स विदाउट अ मीडियम इट इज नो रेडिएशन। का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट without any transfer of heat without any media, okay, without any, आप अपने रूम में क्या करते हो? कई बार यू कीप अ रूम हीटर, है ना, बहुत सर्दी होती है तो आप एक रूम हीटर लगते हो। आप क्या रूम हीटर को जाके छू के आते हो और रूम हीटर से वहां पे किसी का मूवमेंट हो रहा है? नहीं, पर पूरा रूम गर्म हो जाता है ना, ये रेडिएशन है। Without somebody from one place to another can transfer, और बंद रूम है यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा, कंडक्शन नहीं, रेडिएशन हो रहा है आपके बीच और वो रूम हीटर के बीच कुछ नहीं है, पर फिर भी द होल रूम बिकम्स एब्सोल्यूटली हॉट।
ऑलराइट, एम आई क्लियर? अब आप पूछोगे कि पर मैम वी नो दैट अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर, ओ डेफिनेटली, बट बिफोर द हीट रीचेस एटमॉस्फेयर देयर इज नथिंग. एटमॉस्फेयर में घुस जाने के बाद यस कन्वेक्शन माइट हैव, but otherwise all this while it was acting just to extend it, just and just way. Okay? Am I clear, guys? अब हम एक एक्सपेरिमेंट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए कि हम गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं और सर्दी के मौसम में कैसे कपड़े. एक्सपेरिमेंट हम ये करते हैं, हमारे पास रहेगा दो कटोरा, कटोरा ए, कटोरा, कटोरा ए विल बी ब्लैक इन कलर, उसको काले रंग से पोत दिया जाएगा, और कटोरा बी विल बी व्हाइट इन कलर. और इन दोनों में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी रखेंगे और इसको सनलाइट में रख देंगे, बाहर धूप में रख देंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कीप द यूटेंसिल ए एंड which there is water and the sunlight. अब सवाल है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन which you, इन दोनों में कौन सा यूटेंसिल hot first? Have any idea? I know. I'm pretty sure that you know the answers. Come on, everybody, go ahead. Let me know the answer in the comment section. Come on. Go, 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 guys, 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 guys. Come on, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, everybody. Let me know the answer. Which one will be hot first? I know, I know, I know. Okay, okay. I see some people know the answer. Very good. You know what? Which one will be hot first? It will be A. The black utensil hot first. Why? Darker colors absorb more heat. What do we know? We know that darker colors absorb more heat. Okay, absorb more. And light colors, what do they do? The light colors light colors reflect, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. मतलब जैसे हीट यहाँ पे आके टकराता है, दूर भागो करके वो भगा देते हैं, वो अपने पास हीट को नहीं रखते. डार्क कलर, ब्लैक कलर जो वो जल्दी से गर्म हो जाए. तो यानी कि समर में हमें कैसे कपड़े पहने? समर में हमें लाइट कलर के कपड़े पहने. क्यों? लाइट कलर क्लोथ बस वार्म. लाइट कलर के कपड़े जो होंगे वो हमें क्या करेंगे, वो हमें अच्छा कूल कूल रखेंगे. सॉरी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लाइट कलर क्लोथ बस वार्म. ना, दैट्स रॉन्ग. लाइट कलर क्लोथ्स कूल, इट विल बी सी ब्रीज. लाइट कलर का जो कपड़ा होगा वो कॉन्स्टेंटली हीट को दूर भगाता रहेगा. इट विल कीप reflecting the heat and you will not feel cold. And sorry, you will not feel warm. Alright. However, we know that winter season में हम dark color के कपड़े, हम black, maroon, dark blue ऐसे कपड़े पहनते. क्यों? The color absorb more. Darker colors absorb more heat. We wear darker colors. And in the summer, the lighter colors can us cool and breathe. By the way, एक और बात यहाँ पे, you know that in the winter you wear woolen material, right? Woolen material. ऐसा क्यों? Why do you think that woolen? Oh, why? Between the woolen, in between the wool have small holes. Those holes traps air. Okay, woolen material traps air, and you know air is a poor conductor of heat. Kyunki air is a poor conductor of heat, it does not allow the heat from your body to escape out, which is why you warm and nice during winters when you wear woolen. So guys, did you understand all the things that I have taught? Everybody clear? So what are the things that we studied today, class? We have studied about 3 different ways how heat can transfer.
can transfer through conduction, convection, and radiation. Correct? There are three ways heat can transfer: conduction, convection. Now, conduction, it happens in case of conduction happens for solids, happens right. Convection happens in case of liquids and gas, and radiation happens without that, right? Without any. That right? Yes, that's right. Now, conduction में क्या होता है? There is no movement. There is no movement of or atom, molecule, right? But in convection, movement there is molecule. And here, there is no movement of anything but gets transformed by its own without any. है ना? हमने ये देखा कंडक्शन का फैक्ट हमने क्या पढ़ा? What is the definition of conduction? We know that the process by which is transferred from the hotter and colder end of that is not correct. हम एक ही जगह को हीट करते हैं बट हीट ट्रांसफर हो जाता है. जैसे कि कई बार what happens is keep the spoon. जिस स्पून से आप स्टर कर रहे हो, आप मान लो यू आर मेकिंग करी, ठीक है, आप ना कुछ सब्जी बना रहे हो और आपने जो वो ये है ना, जो बड़ी सी चम्मच है ना, उसको आपने कढ़ाई पे रख दिया. थोड़ी देर बाद आप उसका एंड पकड़ते हो, वो भी गर्म हो जाता है ना? क्यों होता है? कंडक्शन. एब्सोल्युटली राइट, दैट्स कंडक्शन. अगला हमने क्या पढ़ा? कंडक्शन में हमने पढ़ा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या चीज होते हैं बेटा? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल which allow heat to pass through, and insulators are those do not allow heat. Yes, we right. Am I clear, guys? Am I clear? Got it, everybody? Okay, you got it, right? So what do we see? We see that. One second. Yeah, we see that there are materials which allow heat to pass through. There are materials which does not allow. Or the insulators are also known for conductors. Yeah. After that, we started learning about convection. In convection, we learned the fact. What is the fact? We learned the fact that convection generally happens in case of liquid or gas. And the fact is, hot air or liquid, because they are lighter than cold air or liquid, okay, they rise up. This is very basic concept about convection. Convection के time पे we also did an experiment. What is the experiment? We took some potassium permanganate crystal, and when we started heating it, right at that point, that potassium पर्पल कलर वो ऊपर गया, और फिर हमने देखा कि पास के जो ठंडी पानी है वो क्या होते हैं, वो दौड़ के उस जगह को कवर करने के लिए. And we see this circle. Hot liquid rises up, cold liquid comes to this part. Hot liquid rises up, cold liquid takes the place. Hot liquid rises up, cold liquid takes the place. This circle is known. Then this circle. Convection. We also read about land. What did we see? We saw that the land is warmer, and warm air, the air around the land is also hot, so the air rises up, and whoop, the cold air from the sea comes and takes the place of the hot air. And this circle continues. The daytime you have, whereas during night time you freeze. The night time, what do you have? Land breeze. Because this time the sea is warmer and the air around the sea is warm, air rises up and the cool breeze from the land, whoop, it rushes. This is land breeze. So how are you going to remember it? You can remember it as DSL, times
nighttime land breeze. Okay, DSL. Will you all remember this? Yeah. And finally, we also read about radiation. Radiation is a process in which it gets transferred from one place to another without any alright, without any yum. जैसे कि from the sun you get the heat. आपको रोज सूरज की किरणें मिलती है, आपको रोज सूरज से वो गर्मी मिलती है. That's because कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपने तवा चढ़ा रखा है गैस पे और आपके पेट में जो कि सामने होगा ना, गैस के थोड़ा सा सामने होगा, आपको पेट में गरम गरम लगती है. क्यों? दैट इज without the air moving, radiation happens on the sides. Okay, convection happens. कन्वेक्शन में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है और जब थोड़ा बहुत गर्माहट जब साइड्स को भी चलने लगती है. Okay? And we also read about what kind of clothes. We know that dark colors absorb a lot of heat, so we wear dark colors in winter so that we can feel warm. And we know that light colors, they reflect a lot of heat, and we wear light colors in summer, so just so that we can feel like cool and breeze. Am I clear, guys? All right, everybody understood this? Yeah, everybody understood this. And now, guys, this brings us to the end of chapter. This chapter is over, guys. And if you liked it, if you loved the way I took the class, if all your doubts were clear, then please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell icon as well. Because if you hit the bell icon, then you will get all the notifications. How I'm teaching. When is Muhammad Al Khalid sir is teaching? When is Arunima ma'am teaching? When is Arunima ma'am? Sorry. That's Arima ma'am. I'm so sorry, Arima ma'am. Don't be angry. Yeah. Everybody. When is Arima ma'am teaching you? When is Jyoti ma'am teaching you? You know when they are teaching, get all the notifications on your phone from Unacademy Center. Don't forget to click the bell icon. Don't forget to like, share, and subscribe because your live school daily dose will happen here. Alright? And guys, we have brought you a brand new channel just for your 7th standard study course. Why can't you just for us? To show us a little bit of love and do like, share, and subscribe, and don't forget to click on the bell icon. By the way, want the PDF notes of this session that I have taken, then that will also be available just below this video in the description box very soon. Not today, but I promise you it will definitely be available very soon. Alright, guys. So that was all for today, and I have finished the heat chapter. From now on, all the physics chapter of 7th standard will be handled by Muhammad Al Khalid sir. I will be handling your chemistry, and Sneha Sardana ma'am will be. Alright, guys. So this is how we have divided, and hopefully you all are absolutely in love with the chapter, absolutely in love with the channel. And guys, I will see you soon. And in this note, in this note, I would like to sign off from today's session. That is, guys, this is me, your science educator from Unacademy, Nakomita Bhattacharya, signing off from today's class. I'll definitely see you very, very soon. But till then, you gotta take care, stay safe, and study well. Alright? Chalo, bye bye. Ta-da.